हेलो स्टूडेंट्स क्लास 10 प्लस 1 चैप्टर 1 सैट्स सैट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ A B C ਜਾਂ X Y Z। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੈ ਰੋਸਟਰ ਔਰ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਨ ਕੌਮਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੈਟ ਬਿਲਡਡ ਫਾਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਟ ਬਿਲਡਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ 1.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, NCERT ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀ ਔਰ ਨਲ ਸੈਟ। ਤੇ ਸੈਟ ਹੈਵਿੰਗ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सैट। एम्प्टी मतलब ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਟਰ ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਐਂਡ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟਸ। A set which consists of definite number of elements, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਾਈਨਾਈਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਡਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जाम्पल सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स मैं कहदा या सैट ऑफ इंटीजर्स कहदा या सैट ऑफ रियल नंबर्स कहदा। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ ਔਡ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈਟ। ਇਹ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਸ ਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। फिर फोर्थ कॉन्सैप्ट जोड़ा इस एक्सरसाइज यूज़ किया गया है वो है इक्वल सैट्स का। टू सैट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलीमेंट्स। दो सैट्स तां इक्वल होंगे जे उन्हां दे विच सेम नंबर ते एलीमेंट्स जिहड़े ने वो भी सेम होंगे। उन्हां दे ऑर्डर नूं जिहड़ा है किवें लिखिया जाएगा? अगे पिछे करके, पर जिहड़े एलीमेंट्स ने वो सेम होंगे, उन्हां दा नंबर भी सेम होएगा। तो ये अपने को चार जोड़े कॉन्सैप्ट्स ने जिन्होंने यूज़ किया गया है एक्सरसाइज 1.2 के विच, जिस दे बारे में दसन जा रही हाँ। Exercise 1.2 first question है which of the following are examples of null set? Set of odd natural numbers divisible by 2। पहला है set of odd natural numbers divisible by 2। odd numbers सब तो पहला किहड़े हुंदे ने? ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ऑड नंबर्स ने 1 3 5 7 ये सारे ऑड ने। तो इतने की क्या गया है? ऑड नेचुरल नंबर लेना है, मतलब ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 लेना है, पर वो 2 ਨਾਲ डिविजिबल होना चाहिए है, जो कि नहीं हो सकता, जो कि गलत है। इसका की मतलब होया कि इसका की आंसर है कि एक किहड़ा सैट है? नल सैट। ये अपन ने यही दसना सीगा कि ये किस टाइप का सैट बनता है, नल है या नहीं है। सैट ऑफ ईवन प्राइम नंबर्स। सेकंड है सैट ऑफ ईवन प्राइम नंबर्स। जे मैं सैट ऑफ ईवन प्राइम नंबर्स लवां तो मेरे को की आएगा? देखो प्राइम नंबर्स जोड़े होंगे ने ਜਿਹੜੇ कि किसी होर रकम से ना वंडे जान, सिर्फ अपने आप से ही वंडे जान, उन्होंने आपां किहड़े कहंदे आ? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 तो स्टार्ट होंगे ने। सिर्फ एको ही नंबर इस तरह का है प्राइम जिहड़ा कि ईवन है, बाकी सारे ऑड ने।
ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि इस सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ एलिमेंट आ गया। ਕਿਹੜਾ एलिमेंट आ गया 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ एलिमेंट है 2 ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹ नल सैट नहीं है। नो इट इज़ नॉट नल सैट। पहले वाला नल सैट सीगा क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई एलिमेंट नहीं आया सी 5 सी। ਤਾਂ सैकेंड ਜਿਹੜਾ है क्वेश्चन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 आ गया। दैट मीनस कि यह नल सैट नहीं है। इस तो बाद अपने को क्या गया है फोर्थ पार्ट दस रही हाँ। थर्ड मैं तुहानू वैसे ही बोल के दस दिनी हाँ। थर्ड है एक्स सच दैट एक्स इज ए नैचुरल नंबर लैस दैन 5 एंड ग्रेटर दैन 7। 5 तो छोटा तो 7 तो वड्डा कोई नैचुरल नंबर दसो। इस तरह का कोई भी नैचुरल नंबर नहीं है कि जिहड़ा इक्को ही टाइम ते 5 तो छोटा भी होवे ते 7 तो वड्डा भी होवे। इस करके आपां की कहांगे कि यह भी की है अपने कोले नल सैट। फिर फोर्थ पार्ट है y such that y is a point common to any two parallel lines। पैरेलल लाइन्स किहड़ियां हुंदियां ने ਉਹ वाली लाइन्स जिन्हां दा कोई भी कॉमन पॉइंट ना होवे ਉਹ अपने कोले किहड़ियां हुंदियां ने पैरेलल लाइन्स। पर इत्थे की क्या गया है y कहंदी कि ऐसा पॉइंट है जिहड़ा कि कॉमन है किस चीज़ दे कॉमन है एनी टू पैरेलल लाइन्स दे। किसी भी पैरेलल लाइन्स के कॉमन कोई भी पॉइंट नहीं होंदा। इस करके ये भी की है नल सैट। इसका आंसर भी की आएगा इट इज नल सैट। ये सी नल सैट नाल रिलेटेड क्वेश्चन। इस तो बाद जिहड़ा अगला क्वेश्चन है वो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सैट्स के नाल है वो मैं दसन जा रही हाँ। सेकंड क्वेश्चन है दसो कि सैट जड़ा है फाइनाइट है या इनफाइनाइट। टेल वेदर इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। जे आपां देखिए तो एक साल दे विच अपने कोले 12 मंथ्स हुंदे ने। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है ਇਹ मेरे को ਕਿਹੜਾ सैट है फाइनाइट सैट। फाइनाइट ਜਿਹਦੇ नंबर्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ लिमिटेड ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ पता कर ਸਕੀਏ ਉਹ ਕੀ है फाइनाइट सैट। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ फाइनाइट सैट है। सेकंड पार्ट है ਇਹਦਾ 1 2 3 अप टू सो ऑन। ਹੁਣ 1 2 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ डॉट्स लगाते। डॉट्स लगाने का की मतलब है कि ਇਹਦਾ कोई एंड नहीं है। तो यह केड़ा सैट हो जाएगा इनफाइनाइट सैट। इस तो बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उस 1 तो 100 तक नंबर्स लिखे हुए हैं वो भी की हो जाएगा फाइनाइट। फिर सैट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन अपने को की आ गया 100। 100 तो वड्डे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स वो भी अपने को केड़ा सैट बन जाएगा इनफाइनाइट क्योंकि वो जोड़े नंबर्स ने आपां नूं पता नहीं है कि कित्थे तक जाएंगे। फिर है सैट ऑफ प्राइम नंबर्स लैस दैन 99। 99 तो छोटे प्राइम नंबर्स वो केड़ा सैट बनेगा फाइनाइट। तो इस तरह अपने कोले फाइनाइट ते इनफाइनाइट जिहड़ा है ਉਹਦਾ कॉन्सैप्ट आंदा है। थर्ड क्वेश्चन भी ये रिलेटेड ही है द सैट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन मैं कल भी करवाया सी कि सैट ऑफ जिहड़ियां लाइन्स ने पैरेलल टू एक्स एक्सिस जे आपां लईए तां वो अपने कोले की होणगीआं इनफाइनाइट। सैट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस जे आपां एक्स एक्सिस की गल करिए तां ओहदे पैरेलल आपां जिन्नियां मर्जी लाइन्स खिंच सकते हैं। तो अपने को ਇਹਦਾ आंसर की आएगा इनफाइनाइट सैट। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ इनफाइनाइट सैट बन जाएगा। फिर है सैट ऑफ लैटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट विच 26 नंबर्स होंगे ने 26 लैटर्स होंदियां ने दैट मीनस ये फाइनाइट है। सैट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। 5 नाल डिविजिबल जो आप नंबर्स लिए तो वो भी एंडलैस ने तो इनफाइनाइट अपने कोले हो जाएगा। इसी तरह अपने को होर क्वेश्चन ने रिलेटेड। हुण मैं फोर्थ क्वेश्चन जोड़ा है वो दसन जा रही हाँ।
फोर्थ की है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी और नॉट। टेल वेदर set A is equal to set B or not। पहला पार्ट है A सेट दिता है A B C D ते B सेट दिता है D C B ते A। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸੇਮ ਨੇ, 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ A B C D ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ A B C D। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, इक्वल हो गए। अपने को A किसके बराबर है, B के बराबर है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, मैं बोल के दस रही हाँ। A थोड़े कोले है 4 8 12 16, B है 8 4 16 ते 18, मतलब B विच एक एलीमेंट एक्स्ट्रा आ गया जोड़ा कि A विच नहीं है। इसी तरह A च एक एलीमेंट है जोड़ा B च नहीं है, तो ये दोवें जोड़े सैट्स ने वो इक्वल नहीं हैं। इस तो बाद अपने कोले है 2 4 6 8 10। थर्ड पार्ट है A है 2 4 6 8 10। B पार्ट है X such that X is a positive even integer and X less than equal to 10। पॉजिटिव ईवन इंटीजर, पॉजिटिव मतलब प्लस वाला, ईवन मतलब 2 4 6 8 10 जो 2 नाल डिवाइड होता है। एक्स लैस दैन और इक्वल टू 10 मतलब 10 या 10 तो छोटा लेना है। हुण पॉजिटिव लेना है तो प्लस वाला आएगा, तो दैट मीनस 2 4 6 8 दे 10। हुण दोवें इक्वल हो गए। देखो दोवां नूं सैपरेट जिहड़ा है फॉर्म्स विच लिखिया होया सीगा। जिहड़ा पहला सीगा उहनूं किस फॉर्म च लिखिया होया है, पहले नूं टैबलर फॉर्म च लिखा हुआ है, रास्टर फॉर्म च, दूसरे नूं सैट बिल्डर फॉर्म च लिखा हुआ है, पर दोवां दा मतलब सेम है तो दोवें सैट्स इक्वल ने। इस तो बाद फोर्थ दा पार्ट सीगा मेरे कोले A है x such that x is a multiple of 10। 10 दे मल्टीपल किहड़े होणगे, 10 20 30 40 ये सारे 10 दे मल्टीपल ने। फिर B सैट दिता है 10 15 20 25 30, मतलब ये 15 25 ये सारे नंबर्स एक्स्ट्रा आ गए। दैट मीनस A B दे इक्वल नहीं है। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ दे विच अपने कोले फिर यही है कि आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सैट्स इक्वल, गिव रीजनस। इन्हां नूं भी सॉल्व करके दसना है फिफ्थ पार्ट नूं कि इक्वल हैगे आ या नहीं हैगे। फर्स्ट है A कोई सेट है और दो एलिमेंट्स ने A ते B। B कोई सेट है X such that X is a solution of quadratic equation x square plus 5x plus 6 is equal to 0। इस दे विच आपां ने की करना है, देखो दो तरह का लिखा होया है। ये तुहाडे कोले किहड़ी फॉर्म होगी, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। सेकंड अपने कोले किहड़ी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। इहदा जे आपां आंसर लिखिए तो आपां ने इहनूं सॉल्व करके दा आंसर देना है। जे मैं इहनूं सॉल्व करा तो देखो इहदे विच किहड़े एलीमेंट्स आणगे। अपने कोले है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इहदे फैक्टर्स बना सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x plus 2 plus 3 x plus 2 is 0। x plus 2 x plus 3 is 0। If x plus 2 is 0, x is minus 2, and if x plus 3 is 0, x is minus 3। तो आपने जो इस सेट का सोल्यूशन लिया था वो कितने बराबर आ गया, -2 ते -3 दे। ऊपर सीगा 2 ते 3, नीचे आ गया -2 -3। दैट मीन्स इसको भी पता लग गया कि सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B।
इसे तरह ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ x such that x is a letter of the word follow। follow ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ follow ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ FOLW। फिर B पार्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या है y such that y is a letter of the word wolf। wolf ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੈ WOLF। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ F ਆਇਆ ਹੈ फिर O आया है फिर L फिर W, मतलब दोवां दे विच सेम अल्फाबेट्स आए हैं। तो आप की कहांगे की आंसर आऊगा कि सैट A सैट B दे इक्वल है। इस तो बाद इत्थे एक 6th क्वेश्चन है जिस दे विच कुछ सैट्स दिते हुए ने A B C D E F G H 8 सैट्स दिते ने, उन्हां दे एलीमेंट्स दिते ने ते ये गल कही है कि दसो किहड़े-किहड़े इक्वल ने। सिंपल है, कर सकते हो। तो तुसी हुण की करना है बेटा कि 1.2 एक्सरसाइज नाल रिलेटेड जिहड़ियां डेफिनेशनस ने ते जिहड़े क्वेश्चनस ने उन्हां नूं ध्यान दे नाल पढ़ना है ते उन्हां नूं उन्हां दी प्रैक्टिस करनी है। ओके बाय, थैंक यू।